are already doing a job in digital marketing. Salma seems she's some internet glitches there. Archana, we can talk. Yeah, ma'am. We are into. My name is Archana, as you know, and we are into the fragrance and flavors business, perfumers. So I'm pursuing this course just because so that I can digitize my business. I want my fragrance, yeah, incense sticks, dhoop, batti, agarbatti on this digital platform. This is quite interesting. Where are you Thank based at, you. Archana? Yeah. Lucknow, and I was in Mumbai for several years. Okay. Right. So yeah, earlier, yeah, my unit was in Daman, but now, right now, we are into Lucknow. Interesting. And I Thank you. can see Manoj also. I mean, he seems to be in some business. I think he is from, he's at his workplace, seems. Manoj, am I right? Yeah, ma'am. Good evening, ma'am. Myself, Dr. Manoj Madavi. Oh, Uh, yeah. I am assistant professor in English at AG College of Arts, Commerce and Science at Nagpur, Maharashtra. And since everything is going on digital, and our educational sector is also going on, digitally. So actually, I wanted to know, acquainted myself with this. So all the changing platform of teaching learning processes. So that's why also I joined this course. awesome, awesome. And Shyam, you are sitting in dark place somewhere? Like, uh, there is, it seems to be dark place. Oh, uh, okay, Salma, we can come back to you. You had some internet glitch, I think, at your end. Yes, Uh, ma'am. I'm sorry for the interruption. that's okay. What do Uh, you do, Salma? Ma'am, I'm working as a digital marketer at a company named DGU at Yeah, Vishakhapatnam. you told. Yes, you told. So how is it going? Since how long you have been working there? Ma'am, it's been 8 months I joined the job. I'm working Awesome. since 8 months. And what kind of exact work you are doing for digital marketing? You handle Um, their social media and like. Ma'am, everything, ma'am. Firstly, I used to work on websites. I design WordPress websites with Elementor. Then Mhm. I do SEO for the different clients, and now I'm working on social media marketing, Facebook and Instagram ads. Okay, this is interesting. Shyam, are you in position to talk to us? Okay, again, I think, okay, doesn't matter. So we will start with the session. Topic of today discussion is ORM. Okay. You know what is ORM we are going to talk about? Ma'am, reputation management. Yes. So this is online reputation management. Okay. I will share my screen with you after this and we'll take you through the topic. We'll tell you the industry practice, how it is working, what exactly is ORM, why companies are doing it, why do we as a brand or as an organization need to do the ORM, right? Okay. Let me share the screen now. This PPT is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I don't know Shyam is there in the session or not. I hope all four of you are listening. Please message me in case you want to have some clarity on the topic itself because I can't see you now because my presentation is open right in front of me. All right. So let me start with the chapter objective. Why are we studying this topic? Okay. You must have been coming across this topic, Salma, as a digital marketer, you have been hearing this term from your management, maybe ORM, right? Yes, ma'am. But I And don't know exactly what it means. yes, I will tell you. And it will be very handy after this session, after this today session and tomorrow session. I'm sure you will feel confident, you will feel upskill on this topic, and you will be able to talk to your seniors about this topic. And Archana, you will be maybe you will start having an eye on your business, what is happening. Right. Okay. Thank you, ma'am. And Manoj sir, I hope you will have additional knowledge, apart from your subject, and it is going to help you. So the first objective is identify actions a company can take to address
negative criticism online. So when I say online, I'm sure you all are very comfortable with social media. You would have your accounts on Facebook, Instagram, Twitter. You all are using your social media. You Yes, have ma'am. your personal accounts there. Ye- Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, personal. But I need to know more. Yeah, I need to know more. I mean, I'm not very good, just beginner level. My level is beginner level, ma'am. Okay, okay. No, that's Thank okay. you. That is why I wanted to talk to you first, having an introduction of you, so that I know, कि कहाँ से pick करना है उसे. I tell you, आपका भी सोशल मीडिया के सेशन हो गए हैं. हाँ, शायद हो गया मैम. ओके, तो ठीक है, अभी मैं उसका एक बेसिक सा देती हूँ. तो व्हेन आई टॉक अबाउट ऑनलाइन, व्हेन आई से आइडेंटिफाई एक्शन अ कंपनी, एक कंपनी जो, दिस इज सिंपल ट्रांसलेशन, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. एक कंपनी को जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म ऑनलाइन मिलता है. सो नाउ लेट्स फोकस ऑन नेगेटिव क्रिटिसिज्म ऑनलाइन. सो ऑनलाइन इज योर वेबसाइट, okay, your social media accounts. Here when I'm saying social media accounts, it is your company or your brand social media accounts. Like for fragrance, you can after this, once you are through with this digital marketing course, you should be creating a Facebook page for your brand and Instagram page, so that becomes your online presence for your brand. तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल आई विल बी पिकिंग लाइव एग्जांपल्स ओनली, ओके, सो दैट यू आर एबल टू रिलेट एंड यू आर एबल टू लर्न. से फॉर एग्जांपल अर्चना मैम, आपने एक फ्रेग्रेंस बनाया. आपने 5 फ्रेग्रेंस किसी कस्टमर को डिलीवर करने का आपने कमिटमेंट लिया. ओके, वहां पे क्या हुआ, आपने डिलीवर किया और टिल योर प्रोडक्ट रीचेस टू योर कस्टमर, वहां पे कोई भी ग्लिच आ सकता है. इट कुड बी रिलेटेड टू डिलीवरी, इट कुड बी रिलेटेड टू लेट डिलीवरी, इट कुड बी रिलेटेड टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर योर प्रोडक्ट. क्योंकि फ्रेग्रेंस को उसने टेस्ट नहीं किया है, उसने ऑनलाइन आपसे ऑर्डर किया है, ठीक है, बेसिस ऑन सम अजम्पशंस, बेसिस ऑन योर मार्केटिंग. उसने उस एड से इन्फ्लुएंस होके आपसे ऑर्डर किया, बट उसे उतना अच्छा नहीं लगा, और मे बी उससे ओवरऑल कंपनी की सर्विसेज अच्छे नहीं लगी. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट टिल हियर एवरीवन? यस. Yeah, I would not mind if you stop me anywhere in between, okay, so that you don't skip any point and miss on any understanding or any important point. Dr. Manoj, I would request you also, ki if you want me to talk about any other live example, any other brand, please, we can talk about it, okay. And negative criticism, yeah. सो अर्चना जी, जैसे मैं कह रही थी, आपके सपोज आपका प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम पे नहीं मिला आपके कस्टमर को, राइट. आपने उसे कमिट किया कि ये प्रोडक्ट आपको लखनऊ से मुंबई 3 दिन में मिल जाएगा, बट somehow for any reason he got the product maybe in 5 days or 6 days, और उन्हीं 4-5 दिनों में उसका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट था जहां पे वो प्रोडक्ट को यूज करना चाहता था और वो मिस हो गया. सो ही इज फ्यूरियस. So what he is going to do, he is going to call you, you will maybe apologize कि ठीक है, okay, sorry, but what he can do, और जो बाकी कस्टमर भी करते हैं, और frankly speaking मैंने भी 1-2 बार किया हुआ है, he will go on your social media pages, maybe on your website, maybe on your Google business, you understand, आप अपना बिजनेस गूगल में रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है. तो जब भी कोई टाइप करेगा, सपोज आपका ब्रांड का नाम है XYZ, तो XYZ परफ्यूम अगर किसी ने टाइप किया तो आपका बिजनेस आ जाता है, अगर आपने गूगल में रजिस्टर कर रखा है. वो वहां पे अपना रिव्यू छोड़ सकता है. ही कैन टॉक अबाउट एनी नेगेटिव पॉइंट. ही कैन, आपके फेसबुक पेज पे गया, ठीक है, सपोज आपने कोई भी अपना पोस्ट किया है, वो वहां जाके कमेंट लिख देगा, गाइस don't buy from this product, they are not able to deliver on time, their product is not good. This is called negative criticism. ठीक है, एक्चुअली जो क्रिटिसाइज वर्ड है ना, वो नेगेटिव ही है. सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ, उसको बिल्कुल एम्फसाइज करने के लिए, उसको बिल्कुल स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करने के लिए क्रिटिसिज्म के आगे नेगेटिव लिख दिया. पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कुछ नहीं होता. क्रिटिसाइज कर रहे हो आप, इसका मतलब आप उसको कुछ you are taking out some negative statement. ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया? मनोज जी, अर्चना जी, सलमा एंड इफ श्याम इज देयर? yes ma'am कि like negative Yes, ma'am. criticism. ठीक है। Yes, तो जैसे हाँ, बीच में यस या नो करते रहिए, तो आई विल बी लाइक, अभी नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने लैपटॉप से बात कर रही हूँ। ओके। तो कोई भी आपकी डिलीवरी से लेके एनीथिंग, ऐसा वो लिमिटेड नहीं है पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को लेके। आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जरूरी नहीं है कि उसने आपसे प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज ले ही ली हो। ठीक है, हो सकता है वो पोटेंशियल कस्टमर हो, फ्यूचर में लेने वाला हो, वो आपके बारे में कुछ भी अगर नेगेटिव आपके सोशल मीडिया पेजेस पे, आपके वेबसाइट पे, आपके बिजनेस डायरेक्टरीज में लिख देता है, तो वो हो गया नेगेटिव क्रिटिसिज्म। सेकंड, एक तो पॉइंट ये हो गया कस्टमर ने लिख दिया। नाउ यू एज ए ब्रांड, what will you do? You just cannot afford to keep sitting and listen to this, right? So you as a company will determine worthwhile actions to increase the company's positive online content. तो एक तो हो गया आपने नेगेटिव क्रिटिसिज्म को हैंडल किया। सेकंड, यू कैन नॉट कन्फाइन योरसेल्फ कि किसी ने आपको एक नेगेटिव कमेंट लिखा और आपने उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर दिया, मे बी यू कॉल्ड हिम और यू सॉर्टेड आउट हिज क्वेरी। Your job as a brand, as an organization, as an institution is also to maintain positive image. For example, okay, tell me one thing. When I say Tata, what comes in your mind? Ratan Tata. Ratan Tata, okay. And it's a big corporate and very big corporate. Okay. Trust factor? Yes. Social service? Ethical practitioners. Yes. So ethical practitioners. So what do they do? तो ऐसा नहीं है कि आप टाटा के कितना ग्रुप है, ठीक है, इफ यू स्टार्ट काउंटिंग हमारा अगले 15 मिनट टाटा के बिजनेस गिनने में ही चला जाएगा। ठीक है, आप उनके कितने सारे बिजनेस देखो, वट एवर, दे हैव मल्टीपल ऑनलाइन प्रेजेंस, मल्टीपल, हर ब्रांड के उनके दो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, you all understand the difference between the brand, company? This is clear to everyone? Because I will be talking about brand, I will be referring this word again and again. All of you are clear, or do you want me to explain in 2 lines? Yeah, please ma'am, explain within 2 lines. Yeah. हाँ, okay. See what happens, जैसे टाटा है, ठीक है, टाटा एक ग्रुप है, उसके अंडर टाटा की मल्टीपल कंपनीज हैं। टाटा स्टील है, टाटा के हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, टाटा ऑटोमोबाइल है। तो एक कंपनी, एक इंस्टीट्यूशन हो गया, एक एंटिटी हो गया, ऑलराइट, उसके अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। अग्री? किसी भी कंपनी के, आप रिलायंस ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, और फॉर दैट मैटर कोई भी छोटा ब्रांड ले लीजिए, दे विल हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो वो हर प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से भी ब्रांडिंग कर सकते हैं और सेम नाम से भी ब्रांडिंग कर सकते हैं। कैन एनी वन ऑफ यू गिव मी एग्जांपल? किसी भी कंपनी का, एक कोई ऐसी कंपनी जिसके 2-3 प्रोडक्ट्स हो, 2-3 प्रोडक्ट के नाम अलग अलग हैं, और दूसरी कंपनी जिसके सारे प्रोडक्ट्स के एक ही नाम है। हम सडनली याद नहीं आ रहा है। ओके, किसी और को? डॉक्टर मनोज, आपकी जो कंपनी है मैम, रिलायंस। या रिलायंस। सी, रिलायंस, टाटा का रिलायंस। नो, रिलायंस, टाटा का रिलायंस नहीं, टाटा इज अ सेपरेट ग्रुप, रिलायंस इज सेपरेट। ओके, सो रिलायंस में जियो है, रिलायंस में एसेट मैनेजमेंट है। अभी जितने भी रिटेल आउटलेट देखते हो, मल्टीपल रिटेल आउटलेट, मोस्ट ऑफ हैव बीन टेकन ओवर बाय रिलायंस नाउ। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल ब्रांड, अलग अलग नाम से वो ब्रांड है। जैसे बाटा के हैं, अब बाटा के जितने भी शू हैं वो बाटा के नाम से ही पता है आपको, ठीक है, बट बाटा का एक प्रीमियम सेगमेंट है हर्ष पपीज के नाम से। यस, ठीक है, तो हर्ष पपीज एक अलग ब्रांड है, और जो टाटा के बाकी जो ऑर्डिनरी सेगमेंट को रेफर करते हैं वो आपके टाटा के नाम से हो जाते हैं। तो
जब अभी मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं घुसूंगी, नहीं तो पूरा मतलब वी विल बी लाइक वी विल लूज आवर फोकस एंड वी विल स्टार्ट टॉकिंग हेवायर। तो ब्रांड आप ऐसे समझ लीजिए, क्रक्स में एक कंपनी के मल्टीपल ब्रांड हो सकते हैं और एक कंपनी का एक ब्रांड भी हो सकता है। सो कोई भी आप ब्रांड पिक कर लीजिए, मेट्रो शूज पकड़ लीजिए, मार्क्स एंड स्पेंसर पकड़ लीजिए, H&M पकड़ लीजिए। अर्चना मैम, आपका प्रोडक्ट का क्या नाम है? आप जो परफ्यूम किस नाम से सेल करते हो? हम लोग हैं खत्री फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स, अर्लियर इट वाज खत्री परफ्यूमर्स, खत्री, या यू खत्री। कैन चेक, यू कैन चेक द गूगल। ठीक है, तो आपका खत्री फ्रेग्रेंस आपकी कंपनी भी है, परफ्यूम आपका ब्रांड है, और खत्री फ्रेग्रेंस आप परफ्यूम आपका प्रोडक्ट है और खत्री फ्रेग्रेंस आपका ब्रांड। We are into soaps, detergents, industrial perfumes as well. Like, because my father was a fragrance designer and he used to work with Hindustan Lever. ओके, Okay. That's Right. interesting. So now my brother is into business. तो वो भी आप खत्री फ्रेग्रेंस के नाम से ही कर रहे हो? एक ही कंपनी है, खत्री फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स। आपके जो प्रोडक्ट के ऊपर जो आप पैकिंग लगाते हो उसके ऊपर खत्री फ्रेग्रेंस लिखते हो? हमारी जैसे धूप बत्ती और अगरबत्ती है तो उस पे खत्री होगा, लेकिन अभी हमने उसे इंटरनेशनल, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड नहीं, अभी जस्ट लखनऊ तक है, यू नो दिस। अगरबत्ती धूप बत्ती लखनऊ तक है, फिर वहां से परफ्यूम लेके लोग कहाँ कहाँ सेल करते हैं वो अभी हमारे पास रिकॉर्ड्स में नहीं है। बट जब हम उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, देन वी कैन गेट टू नो वेयर आवर परफ्यूम इज गोइंग। Right. So you have, it makes sense for you to come on digital platform, learn about it, create your social media pages, interact with your customer, with your prospective customer. Yeah. So that's. So I want to expand this to pan India and pan world. Okay, very good. Thank you. हाँ, तो जब हम ये सेकंड पॉइंट कहते हैं ना, सो इट रेफर्स टू यू अर्चना मैम, डिटरमाइन वर्थवाइल एक्शंस। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव नहीं लिख रहा है, देन यू नीड टू स्टॉप योरसेल्फ देयर ओनली। यू नीड टू क्रिएट योर ब्रांड इमेज और पॉजिटिव ऑनलाइन कंटेंट डालना है। तो अगर आप अपना, डॉक्टर मनोज प्लीज पे अटेंशन टू, वी आर टॉकिंग आई मीन एज ए लाइव एग्जांपल ओनली, ठीक है? आप अपने बिजनेस के आप सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट बनाओगे। वेन एवर यू प्लान टू गेट इनटू डिजिटल, मेक श्योर यू हैव अ वेबसाइट, क्योंकि अगर आपका वेबसाइट नहीं हुआ तो पीपल विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट यू, ठीक है? Yes. तो उन्हें ट्रस्ट नहीं आएगा। आप दे विल नॉट नो कि वो किससे बात कर रहे हैं, कंपनी कहाँ की है। दिस इज फर्स्ट थिंग that creates your first online presence. Then second, create your Facebook pages, Instagram pages to start with, ठीक है? ट्विटर में नॉट बी रिलेवेंट एकदम स्टार्ट करने के लिए, अगर आप फेसबुक इंस्टा में भी करते हो इट विल वर्क। फिर वहां पे आपको क्या करना है, आपको रिलेवेंट कंटेंट पोस्ट करना है। व्हेन आई से कंटेंट, आर यू क्लियर अबाउट दिस वर्ड कंटेंट? Yes, ma'am. Yes, like about the perfumes, attar, oud, jasmine, rose, tube rose, and neroli, patchouli for aromatherapy, for beauty products, dental, ice cream flavors. हाँ, you know. तो आपको कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना है वाया वेरियस क्रिएटिव, ठीक है? आपको बताना है आपके कौन कौन से फ्लेवर्स हैं, आपके परफ्यूम के कैसे करेक्ट तरीके से यूज करना है परफ्यूम को, सो दैट इट स्टेज लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है? परफ्यूम के बारे में essence, various essence, saffron, basically saffron essence, you know, used in biryani and all that. Kesar, rose essence और सैंडल ऑयल। अभी जैसे मॉर्निंग में हमने एक सैंपल पास किया है, लाइक प्रिवेसी भी रहती है कंपनी की, तो इट वाज इंसेंस स्टिक्स, धूप बत्ती जो है वो सैंडलवुड, यू नो, ठीक है? I mean, you have multiple products, ठीक है? आपको what you can do, आपको अपना सोशल मीडिया कैलेंडर क्रिएट करके आपको ऑर्गेनाइज तरीके से अपने परफ्यूम के बारे में बात करनी है, ठीक है? उसका पॉजिटिव ऑनलाइन मतलब आपको एजुकेट भी करना है। और एक और चीज बताती हूँ, सपोज आपके पास किसी कस्टमर का पॉजिटिव फीडबैक है, मे बी ऑन व्हाट्सएप, ओके, ठीक है? पुट इट ऑनलाइन, ओके, ठीक है? उसे हम टेस्टिमोनियल बोलते हैं। अगर कोई कस्टमर आपके बारे में पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, दैट इज नोन एज टेस्टिमोनियल इन इंडस्ट्री लैंग्वेज। आपको अपना टेस्टिमोनियल आप अपनी क्रिएटिव की तरह अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। तो ऐसे व्हाट विल हैपन, अगर आप जब अपना ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हो, तो
ऐसा नहीं है कि आपने क्रिएट किया और आपके पास एकदम से बहुत सारी लीड या बहुत सारा बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, Yeah. बट क्या होगा उसमें एटलीस्ट एक ट्रस्ट फैक्टर जरूर होगा. एंड एज इट इज, इफ यू प्लान टू गो पैन इंडिया, वर्ल्ड वाइड, हाउ वुड पीपल गेट टू नो अबाउट यू? The only thing they have is your social media and your website and your business directories में जहां जहां भी आप अपना business register करते हो, ठीक है. So this Yeah. is how you need to create positive online content. Plus आपको negative criticism भी handle करना है. अभी आगे वाली slide में थोड़ा सा और clear हो जाएगा negative criticism. Till this point, am I clear to all the students? कहीं पे कुछ confusion तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, clear है ना एकदम? Okay. So chapter Yes, ma'am. ORM का एक बुक के एक theoretical definition है. Let's read this once. आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है. The practice of promoting a positive brand image online by increasing the visibility of positive information and managing negative information. Both the points clear? We have covered both the points जो हमने इसी स्लाइड में मेंशन किए थे. यहाँ पे आ गए सबको. पीपीटी दिख रहा है ना? Yes, 1 second. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, please go through it once. It will be useful for your examination purpose. 1 second, ma'am, please. Yes, yes, please take your time. Take 1 minute, and I would request everyone to just go through this. And please Ma'am, stop me whenever you feel I'm going fast, I'm going slow, I'm stuck in a topic, or I am defocusing myself. Ma'am, this is ORM defined. I have taken picture. This you will get in your study material also. Okay, okay. Okay. Now, can I move to next slide? Yeah. So, एक इसमें एक और टर्म होता है ethical ORM. Okay. क्या Dr. Manoj, I would want to hear from you when you come across this term ethical ORM. What is there which comes into your mind? No, ma'am. I'm learning this for the first time. कोई बात नहीं, ठीक है. श्याम, आपको कुछ क्लियर हो रहा है व्हेन आई से एथिकल ORM क्या हो सकता है? गेस, वाइल्ड गेस. मुझे थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहेगा तो आई विल आल्सो लर्न फ्रॉम यू. अर्चना जी, आपका? Yes, ma'am. Ethical means ki like honest presence, we can say like no like जाल बट्टा नहीं. I understand. आप समझ गए हो, but maybe you are not able to just you are not finding the right words, but you have got the crux. ठीक है. सलमा, आपका क्या? Like holistic, you can say holistic presence, like kind of. Okay. सलमा, आपका what do you understand अगर मैं कहूँ ethical ORM? Ma'am, positive content और people को positively present करना. Correctly present. मतलब attractively and positively, like without any negative content. हाँ. मतलब people को affect नहीं होना चाहिए after seeing the ad और. ये भी कह सकते हैं कि transparent presence. Correct present करना, transparency maintain करना. ठीक है. See for example, ठीक है, अभी हम दूसरे एग्जांपल पे करते हैं. सलमा, आपकी कंपनी का क्या प्रोडक्ट है? No product, ma'am. It is a digital marketing company. अच्छा, you offer services. आप अपने किसी क्लाइंट का बिजनेस शेयर कर सकते हो मेरे साथ? Ma'am, sorry to discontinue in between. I have shared the link of my, company, my website, whatever it is right now, but I will have to make separate because on this website, we have not introduced fragrance sticks and batti, agarbatti, all. So for that, I need to make a different website. ठीक है. I will go through that link after this session and will. I have posted in question and answer.
ठीक है, करेक्ट करेक्ट, आई विल Thank you. टेक इट फ्रॉम देयर। सलमा, आपका कोई अपने बिजनेस का कुछ शेयर कर सकते हो, कोई भी बिजनेस जिसमें आपको लगे कि Ma'am, yes, ma'am. We have clients of two dental clinics. One is a dermatology clinic, and we have electric bikes. ओके, Electric bikes का client है. लेट्स पिक द एग्जांपल ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट एथिकल ओआरएम की बात करे तो क्या उसे अपने सोशल मीडिया पेजेस पे लिखना चाहिए जो एथिकल ओआरएम में आए? मतलब क्या एथिकल हो जाएगा, क्या अनएथिकल हो जाएगा? यू वी हैव गॉट द वेरी एक्यूरेट एग्जांपल एक्चुअली, मैं बताती हूँ। Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, आप यू मेक अ गेस। Ma'am, Ma'am, content जो है like if we post or keep any ad, content जो है वो relevant होना चाहिए. रेलेवेंट होना चाहिए, सी कितने सारे न्यू वर्ड्स आ रहे हैं ना, रेलेवेंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, Attractive होना चाहिए. अट्रैक्टिव डेफिनेटली होना चाहिए, बट वो हम उसे एथिकल में, या मतलब अगर किसी का कंटेंट अट्रैक्टिव नहीं है तो हम उसे अनएथिकल नहीं बोल सकते। Okay, ma'am, ma'am. एथिकल वर्ड तो क्लियर है ना हम सबको कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो क्या एथिकल है। तो डर्मेटोलॉजी इंडस्ट्री में अगर वो सपोज कोई भी एक ट्रीटमेंट का एक कैंपेन करते हैं, से फॉर एग्जांपल वो कुछ ऐसा कैंपेन करते हैं जिसमें वो कस्टमर से कह रहे हैं कि आपका स्किन 3 महीने में ये ट्रीटमेंट आपको काम करेगा, इसमें अनएथिकल Skin क्या? tightening, ma'am. स्किन टाइटनिंग से वो एक ऐसा कैंपिंग कर रहे हैं जिसमें वो कस्टमर को कमिट कर रहे हैं कि आपकी स्किन टाइटनिंग स्टार्ट हो जाएगा 3 महीने में। अब इसमें अनएथिकल क्या हो सकता है कि एक्चुअली वो 3 महीने में स्टार्ट ना हो और मे भी प्रोडक्ट उतना इफेक्टिव हो ही ना, बट स्टिल दे आर टॉकिंग अबाउट इट जस्ट टू गेट द बिजनेस। ठीक है, और मे बी वो से फॉर एग्जाम्पल बिलो 40 के लिए वो वर्क ना करता हो, बट स्टिल टू गेट द बिजनेस दे आर सेइंग कि इट इज वैलिड फॉर 30 प्लस, क्योंकि स्किन टाइटनिंग वाला 30 से पहले कस्टमर को नहीं जरूरत है ना। 18 टू 30 वाले के स्किन टाइटनिंग के ट्रीटमेंट के लिए वो नहीं जाएगा, तो उनकी टारगेट जो कस्टमर होगी वो डेफिनेटली 35 या 40 प्लस होगी। ठीक है, उसमें अगर वो कुछ ऐसा एक फॉल्स प्रॉमिस करें, से फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं 70 से ऊपर वाले कस्टमर के लिए काम करेगा, इज दैट नेचुरली पॉसिबल? No, ma'am. आप एक लिमिट तक एजिंग को कंट्रोल कर सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टॉप इट, नेचुरल प्रोसेस आप that नहीं is, रोक सकते। ठीक है, like, यू वांट टू से समथिंग अर्चना? yeah, that's an exaggeration. हाँ, तो उसमें क्या हो गया, वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। अगर वो कोई ऐसा कमिटमेंट करें कि 65 प्लस, आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि आपके क्लाइंट का बिजनेस सुन के जो मेरे दिमाग में आया। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फॉल्स कमिटमेंट कर दें, ओवर कमिटमेंट कर दें, अनएथिकल में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी आती हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ फाइनेंशियल ऐसा कुछ फ्रॉड हो, पेमेंट ज्यादा ले रहे हैं, तो ये सब आपका अनएथिकल में आ जाता है। तो कमिंग बैक टू माय स्लाइड, ethical ORM is not a method for avoiding responsibility for bad business practices. क्या मतलब समझा इसे? बैड बिजनेस प्रैक्टिस अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही हो गया। Means गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना, Yes, ma'am. you know, ठीक ठीक ठाक है, वाला और करना। Not giving wrong information or false information. ठीक है, लेकिन अभी ध्यान से सुनना, एक बहुत बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। आप ये नहीं कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि आप ORM कर ही रहे हो। डिड आई मेक एनी सेंस? डिड आई मेक एनी सेंस? ओके, अगर मैंने कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है, ध्यान से सुनना, बस एक लाइन का है, नहीं करी, दैट डज नॉट मीन कि मैं ORM कर रही हूँ। सी दीज थिंग्स आर टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये तो आपको करना ही करना है, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस तो करनी ही है। तो अगर आप कोई एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा नहीं है, आप वहां पे अपने आप को रोक नहीं सकते कि हमारा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट हो रहा है। क्लियर हुआ? कुछ समझा? मनोज जी, श्याम, अर्चना, कंफ्यूज हुए या थोड़ा सा क्लियर हुआ? प्लीज टेल मी, आई नीड योर फीडबैक।
Ma'am, I still didn't get your point. Okay. What I mean to say is, अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी फेयर बिजनेस, आप कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंट हो, आप एकदम फेयर बिजनेस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ORM कंप्लीट हो गया, आपको भी ORM और करना है, ठीक है। ये एक फर्स्ट स्टेप था कि आपने एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस करी, उसके बाद भी आपको पॉजिटिव ऑनलाइन कंटेंट जनरेट करना है, उसके बाद भी आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, किसी का नेगेटिव फीडबैक आया है तो उससे बात करनी है आप, ठीक है। तो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस फर्स्ट स्टेप है। अभी क्लियर हुआ? Okay. Yes, ma'am. अर्चना जी, श्याम, मनोज जी, आपको क्लियर हुआ अभी यहाँ पे? Yes, ma'am. मनोज जी, आई Yes, वांट ma'am. टू, हाँ, कि मतलब एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस Yeah. आपका फर्स्ट स्टेप है, वो हो गया तो ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है, यू डोंट थिंक कि मेरा ORM बहुत बढ़िया चल रहा है, अब वो आपने फर्स्ट स्टेप क्रॉस किया है, नाउ कम टू सेकंड स्टेप, ठीक है। कमिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन, ORM recognizes that negative online content can have unnecessarily damaging repercussions long after underlying issues. Okay, this is quite theoretical. Point वही है कि जो negative online content है, unnecessary आपके business को negative impact दे सकता है, ठीक है। ये थियोरेटिकल है, आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, इट इज यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है। आप इसको एक बारी टेक 10 सेकंड एंड जस्ट रीड दिस। ये वही, Ma'am, are you on Instagram as well? यस, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, बट Ma'am, वो please थोड़ा share. सा पर्सनल है, अच्छा. ओके। तो आई डोंट नो वहां से आपको कितना, हाउ मच यू कैन लर्न, Okay. बट यस, आई विल Ma'am. शेयर द लिंक, रितु भाटिया के नाम से है, यू विल इजीली गेट इट। मैम, यस, ORM मीन्स ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का जो संबंध है, वो जो पॉलिटिकल लोग उनके प्रचार के लिए जो स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मतलब टारगेटिंग होती है पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिटिकल इश्यूज को लेके, तो क्या हमारा ORM डिजिटल मार्केटिंग भी जो है इससे मतलब संबंधित है? you're going very right, actually absolutely in right direction। हमारी जो प्रेजेंटेशन में बाकी स्लाइड्स है ना, that talks about it। तो जो ORM है ना, पॉलिटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, सबसे ज्यादा, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं, मेरे क्लाइंट थे, आप लोग बाद में, मैं आपको एज ए असाइनमेंट में आपको बताऊंगी, मैं आपको उनका इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक लिंक बताऊंगी, उनके लिए सोशल मीडिया में हैंडल करती थी। तो पॉलिटिशियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, देखो पॉलिटिशियन की कोई ऐसे बहुत कोई टारगेट नहीं होता है कि मुझे इतनी एज के लोगों को ही करना है, ये ऑफिस वाले होने चाहिए, ये बिजनेस वाले होने चाहिए, या ये एकेडमिक्स में होने चाहिए। व्हाट पॉलिटिशियन वांट्स कि सब लोग उसे फॉलो करें, ठीक है। तो ये पॉलिटिशियन के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, और उसे ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम। उसका कोई बिजनेस तो है नहीं डायरेक्ट, वो एक पर्सनल ब्रांड है। तो वहां पे जहां पे पर्सनल ब्रांड मेंटेन करना है, वहां सेलिब्रिटीज के लिए, तो हमने कितना सेलिब्रिटीज का, आई एम श्योर व्हेन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंटरेक्टिंग, यू विल स्टार्ट टेलिंग मी सो मेनी एग्जांपल्स। जो सेलिब्रिटीज का हम जितना भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जितना भी हम इंस्टा में देखते हैं, और कितना सारे हम कहते हैं ये मीडिया, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी स्टंट है, ठीक है। कुछ उनकी पर्सनल लाइफ में हो जाता है, मीडिया उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, ये सब कुछ ORM में आता है। आई एम कमिंग, बाकी की स्लाइड्स में वो आएगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, और कल भी हमारा सेशन है, तो यू विल बी, आई एम श्योर यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बट यू हैव पिक्ड अ वेरी करेक्ट एंड रिलेवेंट टॉपिक। So this is about two things, reputation management and social listening, both again, कि आप सोशल लिसनिंग मतलब आपके सोशल मीडिया, आपके वेबसाइट पे, आपके ऑनलाइन प्रेजेंस जहां पे भी है, आप लोगों को सुन रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट इग्नोरिंग देम, you are reading their comments, you are listening their voice, you are interacting with them. This is known as social listening. Find and gather information about company on social media and gain insight about customer view of company. तो आपका कस्टमर का व्यू क्या है? So it's not always like कि कस्टमर ने एक नेगेटिव ही कुछ लिखा, कस्टमर एक जनरल भी तो कितना लिखता है ना। एक अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप लोगों के साथ शो करती हूँ, आई डोंट नो, जस्ट टू
मेक इट वेरी सिंपल। आप लोग सब कपिल शर्मा देखते हो? सब लोग देखते हैं? श्याम, आप कपिल शर्मा देखते हो? हाँ 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 कभी कभी मैम, देखते हैं मैम। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एकदम से हम रिलेट कर लेंगे। वहां पे वो सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया पेजेस खोल के आप लोगों ने देखा है वो कभी उनके कमेंट्स पढ़ता है? हाँ मैम देखा। हाँ मैम। ठीक है, तो यस मैम। वो अभी देखो वहां पे जो कमेंट्स होते हैं जरूरी नहीं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट मेकिंग अ कनेक्ट विद योर कस्टमर। आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट कि आप वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं या नेगेटिव बात कर रहे हैं। इट्स अबाउट ब्रांड के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बात कर रहे हैं आपसे, आपको उसकी अटेंशन मिल गई है। ब्रांड के लिए इनिशियल स्टेजेस में इतना भी काफी है, ठीक है। फाइनली दैट डेफिनेटली हैज टू लीड टू बिजनेस, उसका फिर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट अगर आपका एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, से आपके पास 100 कस्टमर हैं, उसमें से 30 पॉजिटिव लिख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली से 5 ने नेगेटिव लिखा, तो अगर 10 लोग इंगेज हो रहे हैं दैट इज ओके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कस्टमर व्यू ऑफ कंपनी। रेपुटेशन मैनेजमेंट में क्या है? फाइंड एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी ऑनलाइन, प्रमोट पॉजिटिव इंफॉर्मेशन एंड लिमिट नेगेटिव इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज योर रोल एज ए ब्रांड इज कि आपको जो नेगेटिव आते हैं ना, आपको हाउ विल यू हैंडल, कैसे करोगे? सलमा, आपका कोई क्लाइंट है, सपोज आपकी जो डर्मेटोलॉजिस्ट क्लाइंट है, ठीक है, सपोज उनको गूगल रिव्यू, आपने गूगल किया किसी ने, उनके रिव्यू में लिखा हुआ है कि ये क्लाइंट फेक है, ओवर कमिट करते हैं, इनके ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, व्हाट विल यू डू? कैसे करोगे उसको हैंडल? Ma'am, firstly, we'll check if that person has really attended the clinic or not, if it is a fake review or not. If at all it was a negative review, we'll just reply to the review saying that can we just talk to you personally, or can we know what the issue has been, what the issue you had with our services, etc. हाँ, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। तो जब आपका एक नेगेटिव, उसको अपनी जो नेगेटिव रिव्यूज आए हैं, देखो एक ऑप्शन तो आपके पास सबसे सिंपल होता है, उसे डिलीट कर दो, ठीक है। बट आपको हमेशा ये एक एस्केप रूट है डिलीट करना, वो एक शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। सबसे अच्छा होता है, एज यू राइटली सेड, सबसे पहले कस्टमर की ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए कि वो आपका कस्टमर है भी कि नहीं है। यू नो, ये सब फेक भी होता है। सो डॉक्टर्स के और ये डर्मेटोलॉजिस्ट, वेट लॉस, हेयर ट्रीटमेंट्स, जो बैलनेस के ट्रीटमेंट होते हैं, इन सब में बहुत फेक रिव्यूज मिलते हैं। यू नो, यू कैन बाय दोस रिव्यूज। तो me as agency, you as a agency, you might come across any client जो स्विगी जोमेटो वाले क्या करते हैं, रिव्यूज बाय करते हैं। इसके लिए डेडिकेटेड एजेंसीज हैं मार्केट में जो ORM मेंटेन करती हैं, और जो अलग, यस मैम, यस, और वो उनका काम होता है अपना अलग अलग ईमेल आईडी से। प्रैक्टो ऐप का नाम सुना सबने? डॉक्टर्स की ऐप, डॉक्टर्स यूज करते हैं या डेंटल। Yes, ma'am. तो जो प्रैक्टो में रिव्यू होते हैं ना, वो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कस्टमर है, वो पेशेंट रह चुका है। इट कैन बी यू नो। तो मैम इसका मतलब हम ये समझेगा कि जो ORM है वो एक मतलब दुधारी तलवार है कि जिससे हम मतलब जिस पर्सनालिटी को जो है मतलब हम ऊपर भी उठा सकते हैं, और जो अच्छा एक लायबल आदमी है, लीडर है, उसकी इमेज भी मतलब खराब कर सकते हैं। बिल्कुल, कस्टमर के पढ़े पास लिखे अच्छे आदमी को जो है इजीली पप्पू बना दिया जाता है, और जो अनपढ़ गंवार जिनकी डिग्रियों का पता नहीं रहता, हम उनको मतलब एकदम गुरु बना देते हैं। हो जाता, अनफॉर्चुनेटली होता है, सर हो जाता है कि उनको कुछ नॉलेज नहीं है, उन्होंने जाके फेक लिख दिया, फिर ब्रांड उनसे कह रहा है व्हाट हैपेंड सर, बिकॉज़ यू एज ए ब्रांड कैन नॉट अफोर्ड टू बी रूड विद योर कस्टमर। मैम जो ORM है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, वो जो है अपने अपने PRO भी रखते हैं क्या मैम, पर्सनल रिस्पांस ऑफिसर्स, एंड देन जैसे आपने एजेंसी का भी उल्लेख किया है अभी। एग्जैक्टली मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा, वो डिजिटल PR बोलते हैं उसे। अभी मेरी नेक्स्ट स्लाइड में है, वो सब होता है। ठीक है, थोड़ा सा मूव करते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। ऑलराइट, तो आप like suppose जैसे few days back I have got an offer from Mumbai, like fashion TV होता है, तो they are ready to sell my perfumes,
So Okay. yeah, so yes, worldwide, but I do not have much knowledge about that platform. So can you please guide me ki whether it is genuine or fake, or what precautions I should take if I'm selling my perfumes for fashion TV? You know? फैशन टीवी उस चैनल, आप वो चैनल में प्रमोट करना चाहते हैं आपका फ्रेग्रेंस कैसे? हाँ, वो उन्होंने यही बोला लाइक कि हम आपका ले सकते हैं, वो तो बहुत करस्पॉन्डेंस भी किया उन्होंने, इसलिए कैन यू प्लीज सजेस्ट कि वेदर दिस अ फेक और जेन्युइन एनी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं. इट कैन बी वेरी जेन्युइन लीड. इट कुड बी, इट कैन टर्न आउट टू बी वेरी जेन्युइन लीड फॉर यू. स्पीक टू देम अगेन. देखो फिर वही होता है ना, अभी आप कैसे जेन्युइनिटी चेक करोगे? आप उनके वेबसाइट पे जाओगे, आप उनका कंटेंट देखोगे, आप उनका इंस्टा पेज चेक करो, आप उनका सोशल मीडिया पेज चेक करो, टॉक टू देम. दे शुड बी टॉकिंग टू यू वाया प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म ओनली ऑन ईमेल. ईमेल भी प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए. ओके. हाँ, और आप यू शुड नॉट स्टॉप योरसेल्फ. आप उनसे बात करो. ओनली थिंग यू कैन टेक केयर इज आप अपना कोई बैंक का डिटेल या कोई अपना पेमेंट फर्स्ट आप इनिशिएट मत करो फर्स्ट ट्रांजैक्शन. ओके. वो आपके केस में हो सकता है वो आपसे कहेंगे आप हमें कुछ फ्री सैंपल भेजिए. नहीं, उन्होंने पहले पेमेंट की तो बात कुछ करी थी कि मतलब पेमेंट देना होगा. हाँ, सी एज फार एज दे आर गिविंग यू पेमेंट, अगर वो फेक भी हो तो इट डजंट मैटर टू यू. यू नीड नहीं, वो नहीं दे रहे हैं, हमसे मांग रहे हैं. अच्छा, आपसे फ्री में वो मांग रहे हैं क्या? मतलब सैंपल प्रमोट करने नहीं के नहीं लिए? नहीं, पहले तो मतलब वो इस वर्क के लिए मनी मांग रहे थे पहले कि हम आपका प्रमोट करेंगे, वी आर फ्रॉम द फैशन टीवी. नहीं 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 नहीं, डोंट गिव एनी मनी. अच्छा, अभी Okay. अभी आप इस स्टेज पे मत दो. व्हाट मैं आपसे बाद में देयर आर एक्चुअली लॉट टू टॉक. आप किसी Okay. इन्फ्लुएंसर की हेल्प ले सकते हो. आप अपना इंस्टा पेज पे, मैं आपसे कनेक्ट करूंगी कल जब हम ये सेशन रैप अप करेंगे ना, तो हम हाँ. थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे इसके तो बारे हम में. लोग किसकी हेल्प ले सकते हैं मैम? इन्फ्लुएंसर्स की. अच्छा. हम ये भी एक टॉपिक ही है. आप लोग ड्यूरिंग योर लेक्चर ना, सी सारे वो टॉपिक कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. जब आप अच्छा. इन्फ्लुएंसर बोलोगे तो ORM आ जाएगा. तो स्लोली बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल फाइंड इट कि सब कुछ आपके लिए बहुत रेलेवेंट है. तो आप यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि क्या चीज है. मैम प्लीज शेयर द लिंक और एनी इंफॉर्मेशन जो आपने टर्म यू कीवर्ड यूज किया है इसमें चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए. श्योर आई विल आस्क OCP Academy टू गिव यू रेलेवेंट स्टडी मटेरियल. और मे बी वो आपके सिलेबस में आगे कवर होने ही वाला हो करिकुलम में. ओके ओके, थैंक यू. ओके, ऑलराइट. तो एक तरीका होता है अच्छा करना कैसे है, आपको कैसे अपडेट रहना है इंडस्ट्री में, व्हाट इज हैपनिंग. एक पॉइंट और है ORM में आपको. मैं वापस से स्क्रीन में, इज इट ओनली अबाउट योर ब्रांड? मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर पढ़ रही हूँ. आपको ORM में कॉम्पिटिटर को ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है. तो से फॉर एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल लूं? अर्चना जी आपके प्रोडक्ट का लूं या सलमा आपके प्रोडक्ट का लूं? और मनोज जी यू वांट मी टू टॉक अबाउट एनी अदर प्रोडक्ट? Either ways, like I have a habit of taking things very maturely, ma'am. Not an issue, please go ahead. Whatever you want to. Yes, why not? ठीक है. नहीं, ओके, लेट्स टेक डर्मेटोलॉजिस्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं. तो आपके क्लाइंट का क्या नाम है सलमा? जो नोवा स्किन क्लिनिक. नोवा स्किन क्लिनिक. तो नोवा स्किन क्लिनिक का एक काम है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस करना. दूसरा काम है पॉजिटिव ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट करना, एजुकेटिंग इन ट्रांसपेरेंट वे, करेक्ट वे, राइट वे एंड क्रिएटिंग अ ट्रस्ट. दिस इज सेकंड. थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा अपने कॉम्पिटिटर की एक्टिविटी को भी ट्रैक करना. आप तो नोवा स्किन केयर जैसे कोई उनका स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मुझे बताओ, जैसे डॉक्टर बत्रा है, ठीक है. Ma'am, in Vizag it is SkinMed, Olivia VLCC. Skin Clinic. VLCC है. Yes, ma'am, VLCC. ठीक है. तो यू एज ए क्लाइंट आप अपने क्लाइंट को ये एडिशनल सर्विस दे सकते हो. आप उनके कॉम्पिटिटर का सोशल मीडिया पेजेस ट्रैक करोगे, उनको फॉलो करोगे, उनके कस्टमर उनके बारे में क्या लिख रहे हैं, व्हाट दे आर राइटिंग, यू शुड नो इट. उससे क्या फायदा होगा? देयर आर मल्टीपल एडवांटेज. फर्स्ट एडवांटेज दैट यू विल गेट एजुकेटेड फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर अबाउट योर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट. ठीक है. नहीं तो आपको अपने कॉम्पिटिटर की मूवमेंट कैसे पता चलेगी? हाउ वुड यू गेट टू नो, है ना?
तो उनका वेबसाइट, उनके सोशल मीडिया पेजेस फॉलो करो, उनको ट्रैक करते रहो, उनके लिंक्डइन पेजेस। ऑल्सो सी लोग, पीपल, कस्टमर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में क्या लिख रहे हैं। उससे दूसरा एडवांटेज क्या होगा, यू विल नो कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, तो Yes, ma'am. उसका एडवांटेज आपको कैसे होगा, यू विल बी एबल टू ऑफर देम। Customer should always be priority. यस, तो आप अपनी कंपटीशन को ट्रैक करने के मल्टीपल एडवांटेज होते हैं। तो आप अपनी कॉम्पिटिटर के लिए एजुकेट हो जाते हो। सेकेंड, आप पता चलता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन योर कस्टमर माइंड, व्हाट डू दे वांट। You can come up with creative schemes, you can come up with creative campaign and multiple things you have to offer them. कुछ negative है, you can be careful for your product कि आपको नहीं करना है। Did I make sense? मनोज जी, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे क्लाइंट का ओवर कमिटमेंट हो गया और ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं था और लोग बहुत नेगेटिव लिख रहे हैं उसके बारे में, दे आर फ्यूरियस अबाउट इट। तो यू एज ए नोवा स्किन केयर यू विल बी केयरफुल कि आपको अपने कस्टमर से ओवर कमिट होने का नुकसान हो। ठीक है, तो आपको यू कैन हैव मल्टीपल एडवांटेजेस। सो एक तो हो गया अपने पेजेस को ट्रैक करना, सेकंड हो गया अपने कॉम्पिटिटर के पेजेस को ट्रैक करना। ठीक है मैम, श्याम, आपको आई एम नॉट गेटिंग एनी इनपुट। Ma'am left suddenly. I think she'll come back. Yeah. Ma'am, you're on mute. Yes, not able to hear you. Okay, I'm sorry, I don't know how I got disconnected. Okay. So Shyam, I wanted to hear from you something, anything। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि श्याम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ So Shyam, can you please switch on your camera? Answer me in yes or no. हाँ कुछ मैम, आ भी। रहा है, समझ में आ रहा है। Okay, great. मैम, हाँ हाँ, yes. मैम जैसे हम मतलब हमारी सोसाइटी में डॉक्टर को जो है मतलब जस्ट लाइक गॉड देखा जाता है क्योंकि वो लाइफ सेव करता है। Right. तो क्या फिर हम डिजिटल मार्केटर जो है या जो हाँ। एजेंसी चलाने वाले हैं या ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करने वाले लोग, यानी हम लोग, आप या हम, हाँ, तो शायद इनका दर्जा भी जो है मतलब उसी तरीके का एक इम्पोर्टेंट हो गया है, ऐसा ही लगता है ना मैम? कि हम नहीं, रेपुटेशन भी बना रहे हैं या फिर नेगेटिव कैनवासिंग एंड कंपेनिंग करके जो उसको मतलब कोलैप्स भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि सब लोग, अगर आप एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर हो तो आपसे डरने लगेंगे। जी देखो, एक बार ना एक डॉक्टर अप्रोच मी, उसने मुझे अप्रोच किया कि मुझे 50 पॉजिटिव रिव्यूज चाहिए। दिस वाज वन। उसका दूसरा रिक्वायरमेंट था कि दूसरे डॉक्टर के पेज पे 10 नेगेटिव रिव्यू चाहिए। दैट बिकम्स अनएथिकल, व्हिच आई डिड नॉट डू। मैंने नहीं किया वो। सो दैट कम्स अंडर कि अब मैं एज ए डिजिटल मार्केटर मेरी बिजनेस प्रैक्टिस क्या है। तो आई नेवर डन दिस, बट यस। जैसे आप देख सकते हैं कि आज के कर्नाटका के जो मतलब पोल्स का जो रिजल्ट भी लगा, हम उसको मतलब पॉलिटिकली नहीं ले रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने के बावजूद भी जो है रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो है मतलब कांग्रेस पार्टी को मतलब मिला है। तो क्या लगता है मैम कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, इसका भी मतलब बहुत बड़ा प्रभाव रहा है इस बार के इलेक्शंस में वगैरह? मतलब 100% तो नहीं, बट कुछ परसेंट आप कह सकते हो। सी, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल इंडस्ट्री में ना, एवरीथिंग इज अबाउट पीआर, पब्लिक रिलेशन। वो डिजिटल भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ परसेंट तो देखो, कुछ परसेंट वेटेज तो आप एक्चुअल उन्होंने जो काम किया, जो उन्होंने रैलीज करी, ऑफलाइन और ऑनलाइन पीआर कंबाइंड टुगेदर कैरीज बिग वेटेज। ये जो रैलीज करते हैं पॉलिटिशियन, क्या है ये? पीआर ही तो है ना? तो ये ऑफलाइन पीआर है। जब उसी को वो अपने फेसबुक पेज पे या अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट में कर देते हैं, वो ऑनलाइन पीआर हो जाता है। पॉलिटिशियन के लिए बहुत जरूरी होता है अपनी एक पीआर एजेंसी रखना, उनका होता ही है। पॉलिटिशियन का अगर इंटरेक्शन खत्म हो गया अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, अपने फॉलोअर्स के साथ,
तो ही इज गॉन। सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो क्या है, फिर तो कुछ भी नहीं है। सो इट्स ऑल पर्सनल प्रोफाइलिंग। लोग आपको पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं। सो इवन इफ व्हेन पीपल आर नेगेटिव अबाउट देम एट टाइम्स, दे फील हैप्पी। क्यों? क्योंकि लोग उनके बारे में बात तो कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज यूर राइट, उसमें बहुत बड़ा वेटेज, बट 100% नहीं दे सकते आप, पूरा नहीं। मैम अगर हम हमारे डिजिटल स्किल्स को या हमारे डिजिटल मार्केटिंग के स्किल को एक बेहतरीन कंटेंट राइटिंग का भी अगर जोड़ देते हैं तो आई थिंक हम अगर इस तरीके की मतलब अपॉर्चुनिटीज भी ले सकते हैं। जैसे yes, yeah, you if you know, if on another side you want to start agency or you want to be PR person जिसमें आप डिजिटली भी और ऑफलाइन भी आप किसी पॉलिटिशियन को हेल्प करना चाहते हो, और ऐसी एजेंसीज हैं मार्केट में जिनको मैं जानती हूँ कि जैसे अभी कल यूपी में इलेक्शन थे, ठीक है, जब उत्तराखंड में इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के टाइम में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, एंड दे अर्न इन, आई मीन व्हाट डू आई से, दे अर्न हेफ्टी अमाउंट। होता है ये। देखो मोदी जी का, आई मीन मैं किसी भी फेवर में नहीं बोल रही, पॉजिटिव भी नहीं बोल रही, नेगेटिव भी नहीं बोल रही, बट मोदी जी का पीआर आप देखो ना, उनका कंटेंट देखो, तो क्या है, इट्स ऑल पीआर। उनका स्पीच है, उनके स्पीच डिलीवर करने का तरीका देखिए, जो उनका स्पीच लिखता होगा। आई नो सम एजेंसीज जो मोदी उनके पीएम ऑफिस के लिए काम करती हैं, तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका मतलब बेस्ट, अगर आप मुझसे पूछो कि मैं सबसे ज्यादा किसके पीआर से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मैं मोदी जी के पीआर से इन्फ्लुएंस्ड हूँ। सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनकी एजेंसीज, बहुत बढ़िया। और अगर वो काम करना कम कर देंगी, शायद कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने जो काम किया है, अगर कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा तो फिर कितने ही लोग जानेंगे, है ना? फिर तो वही लोग जानेंगे जो क्लोज नेट में थे या जो उस काम से इम्पैक्ट हुए। सो यस, पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में तो ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। मतलब ये आज जो हम लेसन पढ़ रहे हैं ORM का, इसका मतलब एकदम थोरोली और मतलब सोल है, ऐसा ही लग, जैसे ACO हमारी डिजिटल मार्केटिंग का सोल है, तो उसी तरीके से ORM जो है वो भी मतलब एक प्रकार का सोल ही हुआ हमारे सिलेबस का। डॉक्टर मनोज, जब ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपका ये खत्म होगा ना, आपको लगेगा मुझे और सीखना है, मुझे थोड़ा और एडवांस पढ़ना है, क्योंकि हर टॉपिक जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का, आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे आपको लगेगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो मतलब अभी आपको मे बी कल शाम को लगेगा ORM एजेंसी बन सकता हो, फिर आप जब सोशल मीडिया पढ़ोगे आपको लगेगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो ORM भी नहीं होगा। ठीक है, SEO की जब आप बात करोगे, तो अगर आपकी वेबसाइट स्ट्रांग नहीं है तो क्या कहते हैं, फिर आपका लोग रिव्यूज भी कहाँ लिखेंगे, वो ट्रस्ट फैक्टर भी कहाँ से आएगा। सो ऑल द टॉपिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग आर वेरी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। ट्रू मैम, ट्रू। लाइक इट्स लाइक अभी भी जैसे ना लग रहा है कि very very less knowledge, explore a lot, we have to explore a lot, unquenchable thirst. I was talking with Dr. Pranjal Singh today on the call कि ऐसा लगता है कि I know nothing, beginner level है, मुझे बहुत इसलिए nervousness हो रही कि how will I start my website, कि डर भी लग रहा है। ये nervousness मुझे भी है, मैंने अपना PhD स्टार्ट किया है डिजिटल मार्केटिंग में, तो यस, तो अभी नो द टॉपिक मैम, डिजिटल मार्केटिंग है अभी। उसमें क्या होता है कि टॉपिक के लिए 1 साल का टाइम देते हैं वो लोग। मैम आप कहाँ से कर रहे हो PhD? ये पर्सनल वाला आई विल टेक ऑन पर्सनल लेवल, ठीक है। अभी हम वी विल स्टिक टू आवर सेशन, ओके। और दिस आई वांटेड टू कन्वे दिस कि इस लेवल पे भी मुझे लगता है कि अरे अभी तो बहुत सीखना है। तो इतना वास्ट टॉपिक है, दिस इज व्हाट आई दैट इज आई पिक्ड अप दिस टॉपिक, कि आप जितना भी सीखते जाओगे ना, द मोर डीप डाइव यू गो, यू विल स्टिल फील कि अब इसका भी एडवांस सीखना है। अभी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, yes. It does not mean कि डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो गया है। So learning is you cannot put a stop कि ये मैंने it's an ongoing process. It's ongoing. आप अगर अपने सब्जेक्ट की बात करें डॉक्टर मनोज इंग्लिश की, आप आई डाउट कोई ऐसा पॉइंट है कि अब मुझे सब आ गया है, मैं मतलब वो पॉइंट कभी भी नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप लर्निंग, है ना? ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू मुझे आई मीन 1 घंटा हो भी गया, पता भी नहीं चला, एंड आई एम जस्ट ऑन 7th slide and I have 41 slides. Okay,
सो एक्चुअली मुझे आप लोगों का भी कुछ ये 11th सेशन है ना? Yes, 10 सेशन 11. आपके ऑलरेडी कवर भी हो चुके हैं, तो वो उसमें आप लोगों ने सोशल मीडिया पढ़ लिया है और एसईओ पढ़ लिया, राइट? यस ठीक है, तो अभी हमने जो बात करी यू ऑल कुड रिलेट टू दैट. ओके, ग्रेट. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टूल गूगल अलर्ट. ये टूल आपको हेल्प करता है इंडस्ट्री से अपडेट रहने के लिए फॉर एनी टॉपिक you want to say for example, अर्चना जी आप चाहते हो परफ्यूम और फ्रेग्रेंस, सलमा आप चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ सर्विस, मनोज जी आप चाहते हो just tell me any topic of your choice. दिस इज या ORM. ओके, आप क्या कर सकते हो, गूगल अलर्ट में जाओगे आप, क्रोम में अगर आपकी कनेक्टिविटी है आप राइट अवे ट्राई कर सकते हो. अगर आपके लैपटॉप में कनेक्टिविटी, ऑब्वियसली कनेक्टिविटी है, दैट इज व्हाई हियर आप दूसरा टैब ओपन करके google-alert.com ओपन कीजिए. मैम अभी तो लिख ही ले रहा हूँ मैं, बाद में इसको ट्राई कर लूंगा. अच्छा ठीक है, ओके. गूगल तो ये जो टूल है ना आपको गूगल अलर्ट का, आप जैसे यहाँ पे टॉपिक पे आपने ORM लिखा ना, तो इसमें आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, से डेली, वीकली, मंथली. तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री में लेटेस्ट न्यूज होगी उसका नोटिफिकेशन आपके उस ईमेल आईडी में आ जाएगा जिस ईमेल आईडी से आपने उसको सब्सक्राइब किया. ठीक है, जस्ट टू शो यू एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको. जैसे मैंने, अगर आया होगा तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ. ये आप देख रहे हो गूगल अलर्ट सर्च इंजन मार्केटिंग. मेरा लैपटॉप स्क्रीन विजिबल है ना सबको? नो मैम. No, ma'am. Screen is not shared. वेट, ओके, आई एम सॉरी. मैं अभी शेयर करती हूँ स्क्रीन. एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ. अभी विजिबल है ना? Yes, ma'am. ठीक है, अभी देखिए मैंने सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन सब पे अलर्ट सेट कर रखा है. Okay. ये वाला मेल देखो आप, बस ये वाले 3. ठीक है, तो Okay. इसमें क्या होता है, आपके इंटरेस्ट का जो भी टॉपिक होता है आप उस पे अलर्ट सेट कर दीजिए. यू टेल गूगल दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, और उस टॉपिक से रिलेटेड इंडस्ट्री में या कोई भी न्यूज आएगी वो आपके इनबॉक्स में आ जाए. एंड यू कैन सेट अप टू, यू कैन सेट एज मेनी अलर्ट्स यू वांट. ठीक है, सो यू शुड स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे. आप जब भी सेशन को खत्म होता है अपने अपने इंटरेस्ट का टॉपिक लीजिए और उसको नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए. आपको डेली चाहिए तो डेली आ जाएगा. दिस वे व्हाट हैपेंस, आई स्टे, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मुझे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया, मुझे सबसे अपडेट रहना है. तो मैंने तीनों पे अलर्ट सेट कर रखा है. तो क्या होता है, मुझे डेली बेसिस पे लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है कि इंडस्ट्री में कौन सी एजेंसी है, किस क्लाइंट ने कौन सा कैंपेन किया है. एंड आई गो थ्रू एज पर माई कन्वीनियंस. जब भी उसे टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ ड्यूरिंग माई ट्रैवल. सो दिस इज वन टूल. देन वॉच द सर्व. आप ये सारे टूल्स हैं, आपको अपना ORM कैसे मॉनिटर कर सकते हो आप. ठीक है, सर्व क्या होता है? कैन एनीवन आंसर मी? अगर आप लोगों ने एसईओ पढ़ लिया है तो यू शुड बी नोइंग दिस. Ma'am, please come again. यस, आई एम आस्किंग. ये स्लाइड मेरा सबको व्यूएबल है ना, विजिबल है? वॉच द. Yes. ठीक है, माय क्वेश्चन इज, आप लोगों ने एसईओ पढ़ लिया है ना? Yes, ma'am. पढ़ा तो है search engine optimization. यस, तो यू शुड बी नोइंग दिस टर्म सर्व. मैम पता था लेकिन इस समय नहीं याद आ रहा है. कोई बात नहीं. तो सर्व इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज. एस फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज. पेज. तो Page, जैसे okay. जब आप गूगल में जाके आप कुछ भी टाइप करो, से शर्ट, ऑफिस चेयर, बुक, परफ्यूम, डर्मेटोलॉजिस्ट, एनी वर्ड, ठीक है, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें कुछ रिजल्ट के आगे एडी एड लिखा होता है, कुछ रिजल्ट के आगे नहीं लिखा होता. तो वो डिफरेंट टॉपिक है. जिसके आगे एड लिखा होता है दैट मीन्स वो पेड है, जिसके आगे नहीं लिखा दैट मीन्स वो एसईओ है. पॉइंट हियर इज, उस पेज को हम सर्च बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज.
ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट उस सर्च में नहीं है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स समवेयर यू आर लैकिंग इन योर एसईओ. आपका जो ORM है वो आपके एसईओ को इम्पैक्ट करता है. तो वंस यू स्टार्ट डूइंग योर एसईओ, जब आप एसईओ करोगे उस टाइम आपका ORM ऑटोमेटिकली होगा. ठीक है, आपने एसईओ में पढ़ा होगा कि आपने एसईओ में भी पढ़ा होगा दैट क्रिएट लिंक. यस अर्चना जी बताइए. मैम, या आई वांट टू आस्क कि राइट नाउ दीज डेज की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी वगैरह जैसे बहुत न्यूज में आ रहा है, सो हाउ दिस कैन बी हेल्पफुल इन माय परफ्यूमरी बिजनेस? इज एनीवेज हेल्पफुल? कैसे मैम बताइए. ओके बताती हूँ. आप लोगों को भी रिलेवेंट और लर्निंग लग रही है ना सलमा, मनोज जी? अदरवाइज मैं उनको टॉपिक बाद में भी एड्रेस कर सकती हूँ, बट इट इज रिलेवेंट फॉर यू ऑल्सो. सो बेसिकली अर्चना जी ने पूछा है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन डिजिटल मार्केटिंग. राइट. एक्चुअली यही शायद मेरा टॉपिक होने वाला है मेरे पीएचडी का. थैंक यू वेरी मच. I'm still not sure. वो जब तक until unless you don't register it in a year, you can't be like okay. So say for example, आप किसी वेबसाइट में गए हो, वो जैसे आप वेबसाइट में एंटर करते हो, कोई आपको एक चैट बॉट ओपन अप होता है. हेलो, हाँ, like yes, yeah, कि you want to buy products or delivery charges and all that. Yes, yes. Yeah. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. Oh, okay, okay. तो जो चैटबॉट एक बहुत सबसे छोटा और सबसे सिंपल एग्जांपल है. आपने सपोज अपनी वेबसाइट बनाई, आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आया, अभी आप 24 आवर्स तो अवेलेबल नहीं रह सकते उसकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, बट यू डोंट वांट टू लीव हिम अनअटेंडेड. You want to talk with him, you want to interact with him so that he does not exit the page, quit ना करे वेबसाइट, और he ultimately आप बाय कर ले आपसे, या तो आपके सोशल मीडिया पेज पे जाके बाय कर ले, या आपने अपनी वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करी है तो आपसे वहां पे परचेज कर ले. ठीक है, तो आप एक सॉर्ट ऑफ हेल्प उसके लिए क्रिएट कर देते हो इन अ वे ऑफ चैटबॉट. की सपोज मनोज जी ने आपकी वेबसाइट पे गए तो हेलो मिस्टर मनोज, हाउ आर यू, मे आई हेल्प यू? तो मनोज जी कहेंगे यस, लुकिंग फॉर अ सैफरॉन परफ्यूम. यू विल से यस वी हैव. तो इस तरह करके ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. Saffron essence. Yes. I mean, just an example. So basically, you can create an entire scripted chatbot जो कस्टमर को अटेंड करने में हेल्प करेगा. ये सबसे सिंपल एग्जांपल है. अब बाकी इसका एडवांस बहुत ज्यादा है अभी. मतलब even if you start with this, you will be good to go. Yeah, like into. Yes. Okay, sure. Go ahead, please. All right. So, मैम एक्चुअली अर्चना जी ने बहुत सही टाइम पे पूछा था. इवन आई वाज थिंकिंग टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Mind mapping. you can definitely, you should learn. बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है, अपकमिंग टॉपिक है, और हम लोग एज ए मार्केटर, एज ए डिजिटल मार्केटर, हम लोग को अपने मतलब वी शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि उसका रोल क्या है. ठीक है, हमें अपनी टेक्निकल टीम से काम करवाना है, तो वी शुड नो व्हाट वर्क नीड्स टू टेकन फ्रॉम देम. Like उत्तराखंड में मैम, like उत्तराखंड में जैसे बहुत टेम्पल्स हैं, मंदिर वगैरह हैं, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स हैं, यू नो, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो वो सब अगरबत्ती धूप बत्ती का बहुत स्कोप है, यू नो, संदल पाउडर, कैम्फर. Like there was a time my father was known as menthol king. अरे वाह. So we are into menthol and all that. Thank you. And several times he has got an award from the government of Maharashtra as well, like few years back, a news broadcast. Okay. Thank you very much. All right. So coming back to SERP, तो वो जो पेज गूगल का वो पेज जहाँ पे रिजल्ट आता है कोई कीवर्ड सर्च करने के बाद, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सर्प. तो आप अगर ऑनलाइन रेपुटेशन आपका अच्छा है तो इस पेज में आपके रिजल्ट आएंगे. दीज आर द टूल्स सो दैट यू कैन मॉनिटर योर वेबसाइट एंड सी योर ORM. ठीक है, ये कुछ 8 टाइप ऑफ साइट्स हैं. अच्छा, हम बार बार ORM टर्म यूज कर रहे हैं. एक बारी मैं उसको एक प्रॉपर शेप, एक स्ट्रक्चर देना चाहती हूँ. सो व्हेन आई से ORM, what does it include? Someone is going on your website, leaving a review, one, visiting your social media pages, liking the page,
following the page, commenting it, sharing your post, all comes under your ORM. Okay? तो बेसिकली कोई भी एक्टिविटी आपके कस्टमर की, आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की, आपके पोटेंशियल कस्टमर की, आपका जो टच पॉइंट है, ऑनलाइन टच पॉइंट, कोई भी जो एक्टिविटी होती है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी जस्ट अ सिंपल इंटरेक्शन, हाउ मैम, अगर आपका पर्सनल पेज है, मे बी ही कैन से मैम यू आर वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट कुछ भी. अगर आप पॉलिटिशियन हो, अगर आप सेलिब्रिटी हो, तो आपके लिए तो ये कमेंट भी बहुत अच्छा है ना. इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, तो वो तो दे विल लुक फॉरवर्ड टू गेट सच काइंड ऑफ कमेंट्स, योर ड्रेसिंग स्टाइल इज वेरी गुड एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो बेसिकली ये लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग, any activity will fall under ORM. Get it? ठीक है. तो अभी जब भी हम ORM टर्म रेफर करेंगे, it could be any one of it. कुछ भी हो सकता है. वो आपकी वेबसाइट में गया, उसने वहां पे रिव्यू छोड़ा, बिजनेस डायरेक्टरी में जाया, उसने आपके बारे में, अच्छा, नॉट ओनली ऑन योर सोशल मीडिया पेजेस, आपकी वेबसाइट पे नहीं, हो सकता है वो आपके कंपटीशन में जाके आपके बारे में बात कर दे. ये भी हो सकता है. So Yes. do not restrict, do not confine your mind कि बस मेरा होता है ना कि मेरा पेज, मेरी Like वेबसाइट. I me myself नहीं करना है. Monitoring brand, positive content, negative content. Yes, everything, and not only on your, आपका तो है ही है, वो तो take it for granted कि आपके हाँ. पेजेस में क्या हो रहा है, प्लस कस्टमर आपके बारे में क्या बात कर रहा है. See, I believe your brand is, what is your brand? जब आपके पीछे से कोई बात करता है, तब जो बात करता है ना, तो वो एक्चुअली में आपका ब्रांड है. Like how many followers do you have? इसमें ये भी मैम पता होना चाहिए, you know. Yes. And when was the last time posted? Everything. So you And should respond to the comments, messages, है ना, average response time. yes. है ना, and अभी actually नहीं कि आप brands, 2 महीने के बाद रिस्पॉन्ड कर रहे हो. हाँ, रिस्पॉन्स करना. promptness होनी चाहिए, you know मैम. Yes. तो इन Google सब- reviews, location, brand name, hashtag होना चाहिए, मैम, you know. Right. It looks like कि आप लोगों ने वो 8-9 सेशन पढ़ लिए हैं अच्छे से. मैम हमें वीडियोस देखना इसलिए अच्छा लगता है, अदरवाइज फिर हमें लैब में बहुत टाइम, आई विल गो इनटू द लैब एंड माय सन्स एग्जाम इज आल्सो गोइंग ऑन, you know मैम. Vivas and everything. Yes, he is into university. He's pursuing BJMC. Okay. Nice. Yes. So अभी अब क्या है, देखो, अभी हम लोगों ने इतनी सारी बात करी. ओके, अभी क्या ये सब काम हम मैनुअली कर सकते हैं? नहीं कर सकते. अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, जैसे अर्चना जी आप हो, मे बी फॉर अनदर 2 months 6 months आप कर पाओगे कि आपने बनाया. लेकिन बहुत मतलब मैम इसमें ये पूछना है कि लाइक टीम वर्क, सपोज हम स्टार्ट करते हैं तो हमें टीम वर्क में क्या लगेगा? वेबसाइट मेरी अभी मेरे प्रोडक्ट्स की नहीं बनी, वो मैंने ब्रदर की भेजी है आपको, आपने बिजनेस की. या ठीक है. तो I was having an eye on Salma. For that I have discussed with Dr. Pranjal Singh, लेकिन अभी हमारा वेबसाइट नहीं बना है मैम, so how can I start? पहले तो फिर आप वेबसाइट बनाइए. अगर बजट ना हो तो आप इंस्टा पे पेज बना लीजिए. उसमें आपका ये फायदा होता है, इंस्टा में आप बिना वेबसाइट के भी सेल कर सकते हैं. यही yes, economical. Actually, I do not want to spend too much money, you know, ma'am, because I'm not having this confidence कि कैसे जाएगा ये business. ठीक है. We will again after we will not take other students' time. Okay. तो we will talk about it. अच्छा मैम, इंस्टा पे फ्री है ना बनना पेज? इंस्टा पे पेज भी है. Yes. You can start it. But प्रमोट करने के लिए आपको पैसे लगेंगे. हाँ, नॉमिनल तो इट्स ओके देना, लेकिन लाइक नॉट टू मच. जी, इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट है जहाँ पे आप अपनी बिना वेबसाइट के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. अच्छा, ओके, बाकी थैंक सब यू. जगह वो आपसे आपकी वेबसाइट का लिंक बोलेगा. ओके, कमिंग टू हियर, आई वाज सेइंग कि ये वेबसाइट, ये वाला पीपीटी अब विजिबल है ना अभी? 8 टाइप्स ऑफ साइट टू मॉनिटर. यस मैम. यस. तो आई वाज सेइंग कि आप सब कुछ मैनुअल नहीं कर पाओगे. यू नीड टूल्स टू डू. फिर 1-2 महीना कर सकते हो अगर आपके से 2-3 हजार फॉलोअर्स हैं, आपकी पोस्ट पे 20-30 कमेंट आते हैं,
आपका मार्केट में कंपटीशन ज्यादा नहीं है जिसको आप मॉनिटर करो, देन ओनली यू कैन डू इट मैनुअली, अदरवाइज यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ टूल्स, वेरियस वेबसाइट टू मॉनिटर द ORM। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे आपने भी शायद सुना होगा, येल्प में आपको ऑनलाइन रिव्यू साइट्स हैं, ये येल्प और जगत, इसमें आप जाके बाकी प्रोडक्ट्स के रिव्यू चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे सोशल सिंपल वाला देखते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल एक तो फेसबुक और ट्विटर में है, तो आप किसी का, अगर आपको किसी ब्रांड को चेक करना हो, फेसबुक में जाके उसका पेज चेक करोगे। Yes. तो इसीलिए यहाँ पे फेसबुक एज ए साइट मेंशन किया हुआ है कि आप फेसबुक की हेल्प से, ये एक वेबसाइट की तरह यहाँ पे रेफर किया हुआ है, फेसबुक को टूल की तरह मेंशन किया हुआ है कि आप इन तरीके के टूल्स में जाके आप किसी ब्रांड का ऑनलाइन कैसा है, को लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। ट्विटर में स्पेसिफिकली जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, आप मेरे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है शेयर करने के लिए। तो जैसे एक बार क्या हुआ था, मैंने मेट्रो शूज का नाम सुना हुआ है सबने, मेट्रो शूज? Yes, yes. Yeah. वो प्रोडक्ट खरीदा था एंड इट टर्न्ड आउट टू बी ऑफ नॉट गुड क्वालिटी। तो मैंने उनके ट्विटर में जाके, दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो उनके ट्विटर में जाके एड्रेस किया था, मुझे विद इन 2-3 आवर्स मेरा क्वेरी सॉर्ट आउट हो गया था। एंड पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दिस इन केस ऑफ मनोज जी। रेलवेज में आजकल कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो लोग सीधा ट्विटर में जाके रेलवेज को टैग करके उनके पेज पे प्रॉब्लम लिखते हैं। और क्या प्रॉब्लम लिखते हैं, वॉशरूम्स आर नॉट क्लीन, नॉर्दर्न रेलवे में शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, और इट एक्चुअली गेट्स सॉर्टेड आउट। ट्विटर इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म, अभी एलन मस्क के बाद थोड़ा सा फिर शेकी हो गया, बट स्टिल वी कैन नॉट इग्नोर द पावर ऑफ ट्विटर एज ए प्लेटफॉर्म। तो अभी क्या है, लोगों की आदत बन गई है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, सबसे ज्यादा तो ये पॉलिटिक्स के केस में बहुत ज्यादा होता है। ब्रांड्स, अच्छे जो ब्रांड्स है ना, आपको अगर वो फेसबुक पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, यू गो ऑन ट्विटर, अगर वो ORM में फोकस कर रहे हैं, आपको विद इन 2 आवर्स आपको कोई ना कोई रिप्लाई कर देता है यहाँ पे। बट जरूरी ये है कि वो लोग अपने ORM पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Ma'am, yes, अगर ma'am. अगर वो ORM पे फोकस नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट रिप्लाई यू बैक। हो गया उनका एक नेगेटिव, एक नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई उनके पेज पे, आपका कमेंट देख के बाकी लोग टेम्प्ट होंगे, वो लिखेंगे। तो दैट इज व्हाई ब्रांड्स आर बिकमिंग वेरी विजिलेंट एंड दे आर डूइंग स्ट्रॉन्ग ORM, क्योंकि उनसे एक कस्टमर के रिव्यू से कई बार पूरा हिल जाता है। आप जोमेटो स्विगी में जाते हो, कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करते हो, आप रिव्यू पढ़ते हो, ठीक है। कोई मूवी आती है, मूवी का क्या करते हो आप, सबसे पहले रिव्यू चेक करते हो, है ना। तो ये सब क्या है, अगर आप ORM पे फोकस नहीं करोगे एज ए ब्रांड, देन यू आर गॉन। अगर आपने नेगेटिव को नहीं दिया या पॉजिटिव को सस्टेन करके नहीं रखा, सस्टेनेबिलिटी भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप यू आर गुड एट समथिंग, आपका बिजनेस एक चीज में बहुत अच्छा कर रहा है, यू नीड टू सस्टेन इट, यू नीड टू कीप इट अप, आपको उसे इम्प्रूव करना है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे फेसबुक और ट्विटर जो एज ए मतलब एक टाइप ऑफ साइट मॉनिटर है, ब्लॉग्स हैं, पीपल यू कैन, आई प्रांजल, डॉक्टर प्रांजल विल बी शेयरिंग सम स्टडी मटेरियल विद यू, आई थिंक ये वहां पे होगा, इफ यू वांट यू कैन टेक अ पिक आल्सो। और इसके अलावा भी और बहुत सारी है वेबसाइट्स, ठीक है। देन 3 T's ऑफ ORM इमरजेंसी, हमने थोड़ा इसको स्कैटर्ड वे में, बट हमने इसके बारे में बात कर ली है। व्हेन आई से टाइमलीनेस, आई मीन मतलब टाइमली रिस्पॉन्ड करना कस्टमर को। अभी हमने बात की थी ना अर्चना जी। Yes, yes. इस PPT आपको विजिबल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 T's ऑफ ORM इमरजेंसी रिस्पॉन्स। Yes, yes. Yes, ma'am. Timeliness, transparency, training. आपको अपने कस्टमर को प्रॉम्प्ट रिप्लाई देना है। अगर प्रॉम्प्ट नहीं है, अगर वो रात को सपोज 2 बजे लिख रहा है कुछ भी, तो एटलीस्ट आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करना है कस्टमर को, ओके। सेकेंड इज यू नीड टू बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स आपको क्लियर बताना चाहिए। एक हम लोग एक टर्म सुनते हैं, सेल्स वाले बहुत ये टर्म यूज करते हैं, कस्टमर को घुमाना नहीं है, ओके। बी ट्रांसपेरेंट, जो भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है आप कस्टमर को बताओ, कस्टमर से शेयर करो। सी आफ्टर ऑल एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग, है ना। तो इफ यू विल बी ट्रांसपेरेंट विद देम, दैट विल सैटिस्फाई हिम rather than manipulating the things and you know telling, giving wrong information or anything like that is not appreciated. Then
व्हेन आई से ट्रेनिंग मीन्स जो आपका एम्प्लॉय हैंडल कर रहा है, हाउ ट्रेन्ड ही इज, है ना। उसको कस्टमर से बात करना आना चाहिए। अगर वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, कस्टमर ने कोई नेगेटिव कमेंट लिख दिया, वो पर्सनल लेके आर्गुमेंटेटिव हो गया, दैट विल लूज इट एसेंस। ओआरएम का क्या एसेंस रहेगा? तो ट्रेन्ड एम्प्लॉय होना चाहिए, जैसे हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में देखते हैं, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं व्हेन वी गो टू रेस्टोरेंट, व्हेन वी गो टू रिजॉर्ट्स, वी एक्सपेक्ट देम टू बी एब्सोल्युटली पोलाइट विद अस। Yes. हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम कुछ भी बोल ले उसे तो पोलाइट रहना ही है। तो सेम इज द केस हियर आल्सो, कि जो भी आपका एम्प्लॉय हैंडल कर रहा है, ही शुड बी ट्रेन्ड अबाउट नॉट ओनली पीपल हैंडलिंग, ही शुड बी आल्सो ट्रेन्ड अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल कस्टमर का क्वेरी, है ना। ऐसा भी नहीं कि हमेशा आप नेगेटिव कमेंट पे जवाब दे रहे हो सकता है कस्टमर ने एक जेन्युइन क्वेरी पूछी है कि ये कैसे होगा, कैसे ऑपरेट होगा। से फॉर एग्जांपल आप कोई जूसर सेल कर रहे हो, कस्टमर ने पूछा कि कैसे ऑपरेट करना है, तो योर टीम शुड बी ट्रेन इनफ टू आंसर हिम। सो दिस इज व्हाट it means 3 T's of ORM. This could be your examination question: timeliness, transparency and training. ये एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं ये सेशन वो करूंगी। मैम एक वाला बैक एक बार और बैक कर दीजिए 3 T's वाला। हाँ, यस, या यस, थैंक यू। ठीक है। We will just discuss about one more example. I think फिर I don't want session to go boring और थोड़ा सा तो एक टाको बिल के मैं एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। अभी इससे क्या परसीव कर रहे हो आप इस एग्जांपल से? मैम अगर आप इस पोस्ट को देखोगे तो व्हाट विल यू अंडरस्टैंड? मैम फूड प्रोडक्ट है, लाइक लिकिंग फूड प्रोडक्ट। तो इससे क्या हम परसीव कर रहे हैं कि जो टाको बेल है, ये बेसिकली टाकोस बनाते हैं, ठीक है, और यू विल फाइंड इन मार्केट। तो उनका जो एम्प्लॉय है वो प्रोडक्ट को मतलब ऐसे लिख करके दे आर सेलिंग इट ऑफ। तो दैट क्रिएट्स कितना नेगेटिव इमेज क्रिएट होगा इससे, है ना। अभी इससे क्या इमेज आ रहा है, जैसे एक बारी इफ यू रिमेम्बर, आई डोंट नो, जोमेटो में एक बार केस हुआ था, एक एम्प्लॉय ने खाने को खा के डिलीवर कर दिया था उनके डिलीवरी बॉय ने। एक केस हुआ था, आई थिंक 1-1.5 साल पहले की बात है ये। तो बहुत ज्यादा ये नेगेटिव ओआरएम क्रिएट करता है, बहुत। इसे हम क्राइसिस कहते हैं। वी विल स्टडी टुमारो, वी विल स्टडी इन फर्दर स्लाइड्स, उसे हम फिर वो कंज्यूमर उसमें कोर्ट में जाते हैं ना सर। यस। तो इसी बट ये पोस्ट का टाको बेल का इसमें रिस्पॉन्स आया था पूरा, ठीक है। उन्होंने देखो अभी क्या किया, किसी कस्टमर ने किसी कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉय ने ये पोस्ट कर दिया। तो अगर कंपनी इस चीज को मॉनिटर नहीं कर रही होती तो वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स क्या था, अगर मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि कस्टमर ने जैसे मैं ये भी पूछना कि लाइक लिंक्डइन भी सेलिंग के लिए होता है प्रोडक्ट से, नहीं सेलिंग लिंक्डइन पे नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो आप सेलिंग। लिंक्डइन में एक टूल आता है सेल्स नेविगेटर करके, उसका मंथली सब्सक्रिप्शन आई थिंक 3000 या 3500 होता है। वो हार्डकोर सेलिंग के लिए यूज होता है। I used to get lots of responses for my tobacco business because we are into tobacco as well, ना, जो हुक्के का फ्लेवर होता है। या बट टोबैको को आप डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं करोगे ना, वो आपका फेसबुक और इंस्टा आपको वो कर देगा। हाँ, नहीं, मुझे तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, गुलाब जल, केवड़ा जल, बस ये करना है। ओके। वी आर इनटू रोज वाटर, केवड़ा वाटर एज वेल, लस्सी में डालते हैं ना केवड़ा वाटर। हाँ, अंडरस्टूड। यस। तो ये जो टाकोस बेल का था, उन्होंने न्यूज, अच्छा ठीक है, मैं इसको कल कवर करती हूँ क्योंकि उन्होंने ये न्यूज रिलीज किया था। सो दैट विल कम अंडर डिजिटल पीआर की क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है। तो आई विल टेल यू, हम लोग उस स्लाइड के बारे में बात करेंगे, तो देन वी विल टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। यू विल अंडरस्टैंड कि जब इस तरीके की क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं तब कंपनी पीआर की हेल्प से कैसे इन्हें सॉर्ट आउट करती है। और जब अगर हम ये स्टार्ट करेंगे तो भी कितना मैन पावर लगेगा, लाइक टू स्टार्ट दिस बिजनेस? बहुत कुछ है अर्चना जी, एक्चुअली तो पूरा
डिपेंड। सबसे पहले मनोज जी, इज इट ओके इफ आई डिस्कस Yes, sure, please, ma'am. Thank you for cooperating. Yes. So no, they will also learn. You will also learn. Sarma, it will be handy for you to discuss with your client. Yes. है ना? You never know, you might get any client जो आपका फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में आ रहे हो। मनोज जी, आपका मुझे बहुत डिफरेंट दिख रहा है एकेडमिक्स में भी, आप फ्यूचर में जब भी करोगे तो यू विल बी एटलीस्ट एबल टू डिस्कस। सो अर्चना जी, पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। जी। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। आपको ब्रांडिंग करनी है, आपको स्ट्रेट अवे पैसे कमाने हैं, आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, आपको अपना मार्केट बढ़ाना है, आपको प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है, और यू जस्ट वांट पीपल टू नो योर ब्रांड इनिशियली। फिर वहां से आपको अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर दें या आपके सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू ई कॉमर्स या एम कॉमर्स कैसे करें। आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए, देन यू डिसाइड ऑन योर बजट कि आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो। What is M-commerce? एम कॉमर्स हो गया मोबाइल कॉमर्स, जैसे आप मोबाइल में इंस्टा में आप कुछ देख रहे हो, आप वहीं समझ गए। से Like mobile marketing, next chapter is mobile marketing. yes. तो एक्चुअली हम सब करते हैं, आपने इंस्टा से जरूर कुछ ऑनलाइन डिलीवर किया होगा, वो एम कॉमर्स हो जाता है, मोबाइल कॉमर्स। अच्छा, ओ ठीक है, या मैंने सैंडल्स फुटवेयर कुछ बॉम्बे से मंगाए थे, ईरा सोल से, या So, that इन्होंने becomes- रिटर्न भी किए। दैट बिकम्स योर एम कॉमर्स। तो या आई वाज सेइंग, देन यू डिसाइड ऑन मनी। ठीक है, आपको कितना Okay. मनी स्पेंड करना है, फिर आप Okay. स्ट्रैटेजीज बनाओ। देन यू प्लान कि मैं इसमें कितना टीम ले सकती हूँ। सपोज आपका बजट है, से आप कहते हो कि मुझे 25,000 खर्च करना है, जस्ट इन हाइपोथेटिकल, तो जी। आप फिर आपको देखना होगा कि आपको टीम लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि वो 25,000 में तो आपका शायद इंस्टाग्राम के प्रमोशन पे ही चला जाएगा। ओके। ठीक है, अगर आप कहते हो मेरा बजट 2.5 लाख का है महीने का, तो मे बी यू कैन कीप 2 पर्सन्स विद यू। ओके। आपका मुझे उस स्केल पे जाना है कि मैं महीने के 25 लाख भी खर्च कर सकती हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, देन स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। So- ऑब्वियसली मुझे सब कुछ लाइक इन द सेंस प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करने हैं वर्ल्ड वाइज, की सिर्फ शॉप पे ना रहे, वर्ल्ड वाइज जाए। अभी तो शॉप पे हैं, लाइक फिर पैन इंडिया पैन वर्ल्ड भी हम चाहते हैं कि वो डिलीवरी हो मेरी। तो डू दिस असाइनमेंट फॉर मी। ओके। आप अपना ऑब्जेक्टिव और अपना बजट डिसाइड करो। अच्छा। ठीक है, मैम, आई होप यस somebody was asking something. मैम जैसे डिजिटल मार्केटिंग अगर एक मतलब ज्ञान का समुद्र है, अगर ऐसा हम कहते हैं, तो जैसे बिल्कुल सही। एसईओ उसका एक पार्ट है, तो फिर व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन ओआरएम एंड पीआर? बहुत ज्यादा है मनोज जी, बहुत अच्छा। अगर आपका इंक्लिनेशन है इस इंडस्ट्री में तो यस, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर आपको आई एम सॉरी, अगर आपको बाय एनी चांस कोई पॉलिटिकल कनेक्ट मिलता है, इन केस मतलब यू वुड नो इट, यू कैन ग्रैब इट, कर सकते हो। दैट इज सी, ये सब ऐसे बिजनेस है ना, नेवर एंडिंग है। जैसे फूड बिजनेस है ना, कितना भी कोविड आया, सब कुछ हुआ, मेडिकल है, इट विल नेवर, हमेशा चलने वाला है। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग है, अगर बिजनेस को रहना है, ठीक है, अब बिजनेस कहाँ जाएगा? फूड बिजनेस भी तो बिजनेस ही है ना, क्लोथिंग्स है, जो भी बिजनेस, यू नेम इट अ बिजनेस, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप है। कोविड जैसे टाइम में डिजिटल मार्केटिंग और ज्यादा प्रमोट हो गया था, क्योंकि ऑनलाइन ही एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। तो थोड़ा सा उसका डायरेक्शन भले ही चेंज हो गया हो कि डायरेक्टली डिलीवरी नहीं हो रही थी, बट ओआरएम में ब्रांड पोजिशनिंग के लिए तो बहुत अच्छा यूज हो रहा था। पीपल वर पोस्टिंग कंटेंट, दे वर एजुकेटिंग कस्टमर, दे वर इंटरैक्टिंग, वीडियोस बना रहे थे, बात कर रहे थे। तो मोस्ट ऑफ बिजनेस सर्वाइव ड्यू टू डिजिटल मार्केटिंग। मैम, आपने जो कहा था कि इसके पहले आपने जो सोशल मीडिया हैंडलिंग किया है बाकी पॉलिटिशियंस के लिए वगैरह, तो आपका उस समय का अनुभव कैसा रहा? अच्छा था, जो एक पॉलिटिशियन के लिए किया है मैंने, क्योंकि जब आप एक के साथ कर रहे हो तो फिर यू गेट सॉर्ट ऑफ बाउंड। जैसे वो एनसीपी पार्टी के लीडर हैं मिस्टर सलीम सारंग, आप उनका इंस्टा पेज चेक कर सकते हो। तो अब मैं फिर वो एनसीपी पार्टी, या अगर मैं बीजेपी या कांग्रेस, जैसे कांग्रेस पार्टी में किसी ने मुझसे पूछा था, देन आई शुडंट टेक दिस प्रोजेक्ट। मतलब आप ऐसे 2 पॉलिटिशियन का एक साथ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा होता है क्या मैम कि हमको मतलब कि एक समय पे एक ही समय में एक ही पार्टी के साथ में या लीडर के साथ? या तो ऑपोजिशन में नहीं होने चाहिए, या तो आप है कि मुंबई की एक एमएलए का कर लो, एक आप उड़ीसा के एमएलए का कर लो, दैट्स ओके। और मैम इफ यू परमिट मैम, तो इसका वो हमको मतलब क्या फीस कहिए या फिर किस तरीके का, मतलब उनका एक जो मॉनिटरी अप्रोच होता है वो कैसा होता है मैम? दैट एंटायरली डिपेंड।
रिटेनरशिप पे होता है, मंथली रिटेनरशिप पे हो सकता है, या फिर हो सकता है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे आपको पे करें। तो सपोज जैसे कर्नाटका में इलेक्शन हो तो वो आपको कह सकते हैं टिल इलेक्शन आपको मेरा ये काम करना है एंड आई विल पे यू दिस मच मनी। या फिर ये हो सकता है कि आप उनकी पीआर एजेंसी हो, आप मंथली बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन द वर्क आपको क्या काम असाइन करने हैं, आप उनसे कुछ मंथली बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। यू एज ए मार्केटर ट्राई टू टेक प्रोजेक्ट्स जिसमें आपको मंथली रिटेनरशिप मिले। मैम इसका कुछ ऐसा केस स्टडीज या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिलेगा कि पॉलिटिकल लोगों के लिए किस तरीके से ओआरएम और पीआर जो है मतलब कर सकते हैं अपन, इसके बारे में कुछ पढ़ने के लिए वगैरह? मैं ढूंढूंगी। मैम मे हैव योर नंबर प्लीज? 8586। वैसे आई थिंक डॉक्टर प्रांजल, इट शुड कम थ्रू डॉक्टर प्रांजल। अगर वो शेयर करना चाहेंगे तो दो आई डोंट माइंड, आई डोंट नो डॉक्टर प्रांजल, कैन आई शेयर माय नंबर और यू वांट इट टू डॉक्टर प्रांजल इज देयर? स्वाति, some I don't know someone is there or not. 8586 मैम? 927 ओके 020। 020। बट एक बार आप डॉक्टर प्रांजल से पूछ लेना इफ श्योर मैम, श्योर I mean he should not take it otherwise. या Otherwise I will route it through him. That's okay with me. इट्स ओके। Okay. और मैं देखूंगी, I mean एक मुझे एक रिमाइंडर चाहिए होगा। मंडे को मैं अपने वर्क प्लेस पे जब जाऊंगी I will look. You want political industry में ORM के लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है? Yes. I will try to look forward it. Hope this session was useful for you guys. यस मैम, एक्सट्रीमली। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Extremely Yes, useful. it was very, very good, ma'am. Okay. Thank you. See you tomorrow, guys. या थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। Okay. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you. अर्चना मैम, Yes. अर्चना मैम, मैम Yeah, एक मिनट, अगर आप फ्री हो तो आप एक बार मुझे कॉल कर सकते हैं? मेरे पास आपका नंबर ही नहीं है। एक बार Okay, नोट I कर will लो leave या a मैसेज कर। ओके मैम, नहीं। सॉरी आई did Okay, I will leave a Disturbed. message. Okay, bye. बाय 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 बाय। आप Thank मिला you. लीजिए, मैं बोल रही हूँ, नंबर लिख लीजिए। ओके मैम। 955 955 411 411 00 00 66। 66। ओके मैम, Thank you. Bye bye. बाय मैम।